Hi everyone, welcome back to Unacademy Foundation 9 and 10, and today we are going to have a second part of money and credit. And also I have given you some homework, so I will be testing your knowledge of the first part first. That means we are going to start with the MCQs question. So first of all answer those questions and then we are going to start the second पार्ट. ओके, लाइक एज फार एज द सेकेंड पार्ट इज कंसर्न, बेटा हम लोग जो है इसके अंदर ये टॉपिक्स कर चुके थे. लोन एक्टिविटीज बाय बैंक जो है, दिस वी हैव कवर्ड लाइक इंट्रोडक्टरी पार्ट ओनली. सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द बैंकिंग सिस्टम, हाउ लोन्स आर credited, what are the terms and condition, what are the various sectors from where loans can be taken. Now before I proceed, I would just like to introduce myself. I am Rashmi Singh, your teacher. By qualification, I'm an electrical engineer, but I have been teaching students for past 6 years. Prior to that, I have worked in power plants as well. So guys, if you wish to enroll for an academy subscription, you can use my code RSYT with 1 month subscription, with 1 year subscription, sorry, you can get 6 month subscription for free. And also with my code, it's a limited period offer till 31st October, you can get a 25% of discount. So what are you waiting for, guys? Just go and grab your subscriptions as early as possible. So now before I teach you further, I would take a little bit of test of yours. Okay, so the first one is system of exchanging goods for goods is called. सामान के बदले सामान देना या लेना देना करना, ठीक है. तो एक्सचेंज करना, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? मॉनिटरी सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, बार्टर सिस्टम और एक्सचेंज सिस्टम. So here is your 5-second time. 5, 4, 3, 2, 1 and the answer is barter system. ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु का लेन देन होना. Second question. Self-help groups also discuss the following social problem: health, nutrition, domestic violence, all of the above. गांव के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वहां पे क्या डिस्कस किया जाता है? ऑब्वियसली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपको एक लोन भी देते हैं, बट एट द सेम टाइम ये सारी चीजें भी लेडीज जो हैं वो डिस्कस करती हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टुडे. टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन और ऑल ऑफ द अबव. जब हम लोन लेते हैं तो जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है लोन की, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होता है? इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल मतलब जो गारंटी के लिए आप चीज़ें गिरवी पे देते हो, डॉक्यूमेंटेशन, ऑल ऑफ द अबव. सो ऑब्वियसली द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं बच्चों. द पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट विच बैंक्स कीप विद इटसेल्फ इन कैश इज. बैंक जो है एक हमने जो भी पैसा डिपॉजिट कराया, ठीक है, उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेती है, बाकी वो लोन में दे देती है, राइट, बोरोअर्स को लेंड कर देती है. सो कितना पार्ट वो बेसिकली अपने पास रखती है? दिस इज द क्वेश्चन. 0, स्मॉल प्रपोर्शन, बिग प्रपोर्शन और 100%. सो हियर इन द ऑप्शन द परसेंटेज हैज नॉट बीन आस्क्ड, ऑल्दो दे कीप जस्ट अ स्मॉल प्रपोर्शन विच इज 15% and then they lend 85% of money to the needy person जिसको भी पैसा चाहिए, लोन चाहिए. Money eliminates double coincidence of wants. Money acts as a common measure of value. Money acts as a standard of deferred payments, or money, all of the above. So basically in this question we are discussing the various functions of money. The first one is double coincidence of wants, which means the buyer and the seller has to agree to buy and sell each other's good, commodity, जो कि भाई बार्टर सिस्टम में बहुत जरूरी था. तो क्या मनी ने इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया है? Yes, 100%. It acts as a common measure of value. Yes, like in the world we have so many commodities, like I have a watch, right, at the same time I have a water bottle. So how will you decide the worth or the value, real value of these product? We kind of measure the value in terms of money. So it is a common unit, right, which assesses the value of any product. So B is also the correct option. Now C acts as a standard for deferred payments. Deferred means future payments. तो बच्चों अगर लेटेस्ट सपोज कि आपको ना कोई पैसा जो है आपने उधार में लिया है और आप वो फ्यूचर में पेमेंट कर पा रहे हो, सो दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द मनी. बिकॉज मनी एग्जिस्ट, वी कैन पे द
pay our whatever bill is there in future also we can take the credit. Earlier money used not to be there. तो उधार अगर आपने लिया भी है, आपने चावल गेहूं अगर उधार लिया है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो पेरिश हो जाएगा. बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम विद money, right? And another function of money is it is a store of value. You can store it, its value will not decrease. So that function is not mentioned here, but basically for money we have all these 4 functions. So I hope it is clear. It is kind of a quick recap also. While discussing the questions, I am kind of giving you a brief idea of the concepts I have taught you earlier in the last lecture. An asset that borrower uses as a repayment guarantee to the lender is termed as. Asset क्या होता है? आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप गिरवी रख सकते हो, है ना, लोन लेने के लिए. लेट अस सपोज आई टेक लोन फ्रॉम यू, 5 लाख रुपीज लोन, and I'm telling you that I will repay it in 1 year. So obviously you cannot just trust on me blindly. You would ask something which you can keep, okay, unless and until I repay the complete loan. So that thing which you are going to keep with yourself, the thing of mine is asset. वो कुछ भी हो सकता है, सोने के कंगन हो सकते हैं, गाड़ी का पेपर हो सकता है, घर का पेपर हो सकता है, ठीक है. तो इसको कहते क्या है ऑफिशियल टर्म में? डिपॉजिट, कोलैटरल, एडवांस और ऑल ऑफ द अबव. सो वी कॉल इट कोलैटरल. ठीक है, हम इसको कोलैटरल कहते हैं. बच्चों इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना. ठीक है. At present, which form of money is increasingly used apart from the paper money? Paper money is that currency note, है ना, जिसमें गांधी जी की फोटो रहती है. तो या फिर हर कंट्री के अंदर अपनी अपनी करेंसी होती है, उसको पेपर मनी कहते हैं. तो बोला जा रहा है पेपर मनी के अलावा और कौन सी चीज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं हम? कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, प्लास्टिक मनी, ऑल ऑफ द अबव. सी, कमोडिटी मनी का मतलब है जो चीजें आप यूज करते हो एज अ मनी. जैसे पुराने ज़माने में जो हंटर्स थे ना, वो एनिमल के स्किन यूज़ करते थे, उनके लिए वही प्रेशियस होता था. जो फिशरमैन होता था वो सीशेल्स यूज़ करता था. जो फार्मर होता था वो ग्रेन्स यूज़ करता था. दैट वी आर नॉट यूजिंग नाउअडेज. भाई पता चला मॉल गए 1 kg चावल ले गए, तो तुमको कोई कुछ भी नहीं खरीद नहीं पाओगे कुछ, है ना, 1 kg चावल दे करके. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. मेटालिक मनी इज गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन. दैट हैज़ बिकम क्वाइट प्रेशियस. ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू एक्सचेंज इट फॉर द गुड्स. प्लास्टिक मनी नाम से समझ में आ रहा है ये क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं. Nowadays people actually do not carry that much of cash with themselves. They carry credit card, debit card, or sometimes they do digital payment also, like we call it UPI. UPI जो है वो डिजिटल करेंसी, डिजिटल पेमेंट बोल दो आप, एक मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट है. ठीक है. सो ये होते हैं आपके आजकल के ज़माने में यूज़ होते हैं ना. अनदर क्वेश्चन, रिच हाउस होल्ड्स इन अर्बन एरिया अवेल चीप क्रेडिट फ्रॉम. जो अमीर घर के लोग होते हैं वो अक्सर लोन कहाँ से लेते हैं बच्चों? फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं, या ऑल ऑफ द अबव से लेते हैं. इनफॉर्मल का मतलब होता है फ्रेंड्स, रिश्तेदार. फॉर्मल का मतलब होता है बैंक या फिर कोई कोऑपरेटिव हो गया. गवर्नमेंट मतलब सरकार लोन नहीं देती है भाई. ठीक है, लोन जो है वो बेसिकली बैंक देती है. सरकार लोन माफ जरूर कर देती है. तो लोन माफ करने का मतलब है सरकार, लाइक द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीपे द लोन टू द बैंक फ्रॉम देयर अकाउंट. ओके, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीपे द अकाउंट. ऐसा तो होगा नहीं कि लोन रीपे होगा ही नहीं. ठीक, तो इसका आंसर है फॉर्मल. जो अमीर घर के लोग होते हैं ना, उनके पास कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है डॉक्यूमेंटेशन कोलैटरल की. सो दे कैन इजीली टेक लोन फ्रॉम बैंक. दे हैव अ रेगुलर जॉब ऑल्सो. So bank find them like quite less riskier. Okay, that is why they lend them easily. ऐसा होता है. Which of the following is not a source of rural credit? इसमें से rural credit मतलब गांव के लोग कहाँ से लोन नहीं लेते हैं? Not. Okay. Regional and rural bank, money lenders, traders, government. कहाँ से नहीं लेंगे? तो भाई गवर्नमेंट से कैसे लोन ले लोगे तुम? मैंने बताया ना, गवर्नमेंट लोन नहीं देती है. गवर्नमेंट कर्ज चुका देती है, गवर्नमेंट रिबेट्स दे सकती है, गवर्नमेंट कोई स्कीम चला सकती है. लोन तो बैंक ही देगा. ठीक है. करेंसी इज इशूड इन इंडिया बाय कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा आंसर? सो करेंसी इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक. तो देखो दो टर्म होती है. ठीक है, एक होता है इशूड,
एंड वन इज ऑथराइज्ड। किसी भी देश की करेंसी वहां के गवर्नमेंट से ही ऑथराइज्ड होएगी। ये तो बहुत ही मतलब लॉजिकल सी बात है। लेकिन इशू करने का राइट वो किसी को देते हैं, मोस्टली हर कंट्री के सेंट्रल बैंक को मिलता है ये, जो सेंट्रल बैंक होती हैं, विच इन केस ऑफ इंडिया इज RBI, Reserve Bank of India. Only RBI can basically print money in India. We should keep our savings with banks. हमें अपना जो भी सेविंग्स होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो बैंक में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेफ है, क्योंकि आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि आप उसको कभी भी विदड्रॉ कर सकते हो, या ऑल ऑफ द अबव। नाउ दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन सब्जेक्टिव ऑल्सो, लाइक वाई डू यू नीड टू डिपॉजिट योर सेविंग्स इन बैंक? आपको क्यों बैंक में डिपॉजिट करानी चाहिए आपके सेविंग्स को? सो द आंसर इज वहां पे पैसा मेरा सेफ है, प्लस मेरे को सेविंग अकाउंट पे बैंक 4-5% का इंटरेस्ट भी दे देती है, 4% ही देती है आजकल, हम कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। What is the validity period of a check? In the last class, I have told you the validity period of the check. 4 months, 3 months from the date of issue, 1 month from the date of issue, or unlimited. Suppose करो मैंने आज 30th अक्टूबर को तुमको एक चेक इशू करके दिया कि जाओ मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लो, वो अमीर हो गया ना तुम। तो वो चेक कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? It will be valid for the next 3 months, like October, 30th October to 30th November, 30th November to 30th December, ठीक है? और उसके बाद फिर 30th जनवरी तक, टोटल 90 डेज के लिए बेसिकली वैलिड रहता है, ठीक है? 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है बच्चों। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक कैन बी ₹100 crore, नो लिमिट 1 crore, नन ऑफ द अबव। मतलब कितने अमाउंट का चेक, मैक्सिमम कितने अमाउंट का चेक आपको दिया जा सकता है या आप किसी को दे सकते हो? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Many a times students do not know the answer, kind of game changer question. Any guesses? Can you like kind of answer it in the comment box? Let's see. Okay, so the correct answer is no limit. There is no limit, beta. Like the governments also take loan from some other government. Many a times our country takes loan from some other country, or India also gives loan to some other countries as well. So in that case, checks are only basically given, right? वहाँ पे आप ऐसे करेंसी थोड़ी दे सकते हो। तो देयर इज नो लिमिट, आप कितने भी पैसे का चेक जो है वो बना सकते हो, प्रोवाइडेड आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए, है ना? तभी वो चेक जो है जा करके इन कैश कराया जा सकता है। Who supervises the credit activity of lenders in the informal sector? Informal sector मतलब अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जब आप लोन लेते हो तो कौन मॉनिटर करता है? अभी मैंने तुमको 50 रुपए दे दिए, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है क्या जो पता करने के लिए आ रहा है या कहीं पे वो रिकॉर्ड में जा रहा है? बताओ मुझे। तुमने मुझसे 50 रुपए लिए, तुम आकर के मुझे लौटाओगे, कोई बीच में इंस्टीट्यूशन तो है नहीं ऐसा ऑफिशियल। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नो, कमर्शियल बैंक नो, मनी लेंडर्स नो, नन। Nobody monitors, nobody supervises the informal credit. That is the reason the people, the money lenders basically charge so much of interest rate. 48%, 60% per year, like 5% interest every month. So informal credit इसीलिए इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है कि जो अगर सपोज करो मैंने लेंड भी किया, मतलब मैंने बोरो भी किया अगर मनी, तो मेरा जो भी अर्निंग होगा ना वो लोन चुकाने में ही चला जाएगा। कोई फायदा नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने में। एंड दैट इज द रीजन we have come up with the concept of self-help groups in the rural area. It happens mostly in rural area. So true or false? Interest rate, collateral, documentation, mode of repayment is equal to terms of credit. ये तो बहुत ही प्यारा सा इसका ट्रिक भी है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट अगर आपको याद करना है तो आई लव डोकोमो, इससे याद रख लो। आई का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट रेट, डीओ का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, को का मतलब होता है कोलैटरल, मो का मतलब होता है मोड ऑफ रीपेमेंट। इन चारों को इकट्ठे कहते हैं हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। बिल्कुल सही चीज है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा। ओके,
सेल्फ हेल्प ग्रुप में यूजुअली कितने मेंबर्स होते हैं? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25. So it usually have 20 to 25 members. We are going to study this today. Now this is a picture based question. Nowadays picture based questions are also kind of they are in vogue. बहुत ज़्यादा CBSE को पसंद आने लग गया है. आपको बताना है कौन सा कॉइन सबसे पहले आया. Punched mark coins 2500 years old. तुगलक कॉइन, गुप्ता कॉइन, गोल्ड मोहर फ्रॉम द अकबर रेंज. ये जो कॉइन होते थे ना, इनके बीच में ऐसे गड्ढा होता था, पंच मार्क्ड होते थे, एंड दीज आर द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कॉइन्स. डैश आर वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. रुपी नोट्स, गोल्ड कॉइन, सिल्वर, ऑल ऑफ द अबव. सबसे ज्यादा एक्सेप्ट होने वाला मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज रुपी. आज तुमको मैगी खरीदनी है, रुपया लेकर जाओगे तभी मैगी मिलेगी. ठीक है, आपको पेंसिल खरीदना है, पेन खरीदना है. So whatever you need to buy, whatever you need to exchange, you have to exchange it with the money. That is why money is a medium of exchange. The modern currency is without any use of its own. This is actually one of the most tricky question. And many a times like student gets baffled also, puzzled also कि अरे यार ये क्या question पूछ लिया. The currency today nowadays do not have any use of its own. देखो 2000 के रुपए जो हैं वो बोला सितंबर 30 तक आपको जमा करा देने हैं, तो मैं उसको इकट्ठा करके करूंगी भी क्या? क्या उसका कोई और यूज है? उससे ज्वेलरी बना के पहनूं, है ना, उस पर नोट्स लिखूं? नथिंग. वो जो 2000 रुपीज का नोट है वो तब तक ही वैलिड है जब तक गवर्नमेंट उसको लीगल टेंडर कह रही है, गवर्नमेंट के हिसाब से वो चल रहा है. जैसे ही कोई भी करेंसी डिसकंटिन्यू होती है, डीमोनेटाइज होती है, उसका कुछ और यूज नहीं होता है. पुराने जमाने में जैसे एनिमल फर यूज किया जाता था, उसका कुछ और भी यूज हो सकता था. गोल्ड के कॉइन यूज किए जाते थे, उसको मेल्ट करके ज्वेलरी बना लो. बट द मॉडर्न करेंसी विच इज पेपर करेंसी डू नॉट हैव एनी यूज ऑफ इट्स ओन. आप उसका कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. सो दिस इज ट्रू. वो सिर्फ और सिर्फ आपको काम आएगा चीज़ों को एक्सचेंज करने में, वो भी तब जब तक आपकी गवर्नमेंट उसको ऑथराइज समझती है. सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी, एक्सचेंज वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू. पैसा जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है ना. क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को उससे बदलते हो. पैसा देते हो, चीज़ आपके पास आ जाती है, सामान आपके पास आ जाता है. Majority of the credit needs of the poor households are met from formal, informal, self-help group, none of these. तो अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में मैंने रिच पूछा था आपको, इस वाले क्वेश्चन में मैं पुअर पूछ रही हूँ. रिच लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन है, कोलैटरल है, ठीक है, तो वो लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेते हैं, बैंक में जाकर के जमा करा सकते हैं पेपर. पुअर लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, उनके पास कोलैटरल भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर फॉर देयर बेसिक क्रेडिट नीड्स. क्रेडिट नीड्स के लिए इनफॉर्मल सेक्टर पे ही वो डिपेंडेंट हैं, क्योंकि आप बैंक को जब तक कोलैटरल नहीं दोगे वो तो लोन देगा ही नहीं. ठीक है, ओके. Which of the following is a major reason which prevents the poor from getting the bank loan? This is what exactly I have told you just now. Absence of collateral, non-repayment of loan, higher interest rate, documentation. इसमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो गरीबों के पास नहीं है, जिसकी वजह से जो गरीब है बेचारे उनको मनी लेंडर्स से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ रहा है, बैंक लोन नहीं दे रही है उनको. What is that? So that is absence of collateral. Absence of collateral. Okay, next. Which of the following is not a modern form of money? आज के जमाने में ये नहीं यूज हो रहा. Paper notes, demand deposit, silver coin, none of these. So the correct answer is silver coins. Demand deposit is nothing but your saving account. जब आपके पास सेविंग अकाउंट होता है आपको चेक मिल जाता है, ठीक है, जो कि आप मनी की तरह यूज करते हो. आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, अगेन विच यू यूज इट एज अ प्लास्टिक मनी. सो डिमांड डिपॉजिट आर कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, दोनों ही केसेस में आपको चेक और डेबिट कार्ड वगैरह मिलता है जिसको तुम यूज कर सकते हो मनी की तरह. What portion of the deposits is essential for the bank to maintain in liquid cash for their day-to-day transaction? मैंने 100 रुपये जमा करा है बैंक में, तो बैंक को इसमें से कितना पैसा अपने पास हमेशा कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा, सो दैट अगर मैं कल को जाती हूँ विड्रॉ करने के लिए तो उसके पास पैसा तो हो.
पूरा का 100 रुपीज लेंड थोड़ी कर सकता है बोरोवर्स को, तो दैट इज 15%। ठीक है, समझ आया? गेटिंग इट? अच्छे क्वेश्चंस है ना बच्चों? Find the incorrect option. Demand deposit share the essential features of money. With demand deposit payments can be made without cash. Demand deposits are safe way of money transformation. Demand deposit facility is time bound. Demand deposit मतलब current account, saving account. डिमांड डिपॉजिट जो है वो एसेंशियल फीचर शेयर करते हैं मनी का, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आपके पास चेक है तो आप कैश की जगह चेक दे करके आप पैसे क्या कर सकते हो, बेसिकली चीजों को खरीद सकते हो। तो चेक इज इक्वल टू कैश ना, विच इज इक्वल टू मनी। वाओ, मैथ का इक्वेशन बना दिया। विद डिमांड डिपॉजिट पेमेंट्स कैन बी मेड विदाउट कैश, यस, विद द हेल्प ऑफ चेक we can settle the payment, with the help of debit card also we can settle the payment, with the help of demand draft also we can settle the payments if we have an account. डिमांड ड्राफ्ट ऑल्दो आपके सिलेबस में है ही नहीं। डिमांड डिपॉजिट्स आर सेफ वे ऑफ मनी ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने मनी को बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या रख रहे हो स्टोर करके, वो बहुत सेफ तरीका है। बिल्कुल है बेटा। डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटीज टाइम बाउंड, नो, इसको हम बोलते हैं बेटा टाइम डिपॉजिट। जो आपने कभी अपने पेरेंट्स को या घर के अंदर एल्डर्स को भी सुना होगा आपको बोलते हुए फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। जैसे सेविंग अकाउंट में क्या होता है ना, वेट आई विल टेल यू। सी इन सेविंग अकाउंट्स व्हाट हैपेंस ना, आई हैव deposited certain money, I can withdraw it any time I want, it is not time bound, ठीक है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट टाइम बाउंड होता है। अगर मैंने बोला मैं 5 साल के लिए फिक्स कर रही हूँ अपना मनी, then I can basically go and ask for my money from the bank after 5 years only. If I go and ask for the money after 1 year, 2 year, I will be levied a penalty. पेनाल्टी क्या होता है, आपको बेसिकली बैंक बोलेगी तुमने तो 5 साल बोला था, तुम 2 साल में ही क्यों आ गए। तो वो जो इंटरेस्ट रेट होगा ना, सपोज करो 7% इंटरेस्ट रेट मुझे दे रही थी बैंक, तो वो बोलेगी कि नहीं अब हम आपको 6.5 ही देंगे या हम आपको 6% ही देंगे, क्योंकि आप तो 5 साल के पहले आ गए, आपने तो फिक्स किया था। सो इट इज टाइम बाउंड, ठीक है। ऐसे ही रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हम बैंक को ऐसे बोल देते हैं कि हर महीने में 2,000 आपके यहाँ जमा कराऊंगा और फिर मैं 1 साल बाद आकर के ये पैसे लूंगा। इट कैन बी एनीथिंग, 1 साल की जगह तुम जितना भी चाहो और 2,000 की जगह तुम जितना भी चाहो उतना डिपॉजिट करा सकते हो। लेकिन मैंने बोला 1 साल और मैं 6 महीने में ही चली गई रेकरिंग डिपॉजिट से पैसा निकालने, तो अगेन सेम चीज होगी, जितना इंटरेस्ट दे रही थी बैंक वो उतना नहीं देगी। तो ये हमेशा टाइम बाउंड होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है वो हम जब डिमांड करेंगे तब हमारे बैंक को हमें देना पड़ेगा, इट्स नॉट टाइम बाउंड। वही तो यार, मतलब वही तो नाम है डिमांड डिपॉजिट, हमारे डिमांड के हिसाब से उनको पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। Money is accepted as a medium of exchange because it is authorized by the government of the India, it is issued by RBI, it is legalized as a medium of payment, all of the above। बताओ जरा सारा ही सही है आंसर। और ये आपको कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो आपको ये तीनों ऑप्शन पता होने चाहिए। क्यों मनी एक्सेप्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया, आरबीआई ने इशू किया, आप इजिली एक्सचेंज कर रहे हो, गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर रखा है, पेमेंट आप सेटल कर सकते हो मनी के थ्रू, कोई रिफ्यूज भी नहीं कर सकता कि भैया तुम बोलो कि नहीं नहीं मेरे को तो पैसे नहीं चाहिए, मेरे को ऑडी भी दे दो। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, रिफ्यूज नहीं कर सकते अगर आपको कोई मनी के फॉर्म में पे कर रहा है तो। Why do banks keep a small proportion of the deposit as a cash with themselves? मैंने बताया 15% बैंक अपने पास रखती है, 85% लेंड कर देती है बोरोवर्स को, 15% it keeps with itself। ऐसा क्यों करती है बैंक, पूरा 100% क्यों नहीं दे देती? क्योंकि बेटा they want to extend loan to the poor, they want to extend loan facility to pay the salary of their staff, to pay the depositors who might come
to withdraw the money because the depositor might come and demand the money. They have created demand deposit. तो वो कभी भी डिमांड अगर करेगा पैसा तो भाई देना पड़ेगा ना उसको पैसा, है ना. तो इसीलिए 15% मेंटेन करती है बैंक. Which of the following statement is an essential feature of the barter system? Barter system का essential feature. Money can easily be used to buy any commodity. The barter system is based on double coincidence of wants. The barter system promises payment or at a later date than the day of transaction. The barter system helps the people to buy and sell goods easily and quickly. No, barter system में चीजें जल्दी नहीं exchange होती. आपको आपके willingness match होनी चाहिए, आपको आपके wants match होने चाहिए, आपको वो perfect partner मिलना चाहिए जिससे तुमको exchange करना है. So barter system double coincidence of wants पे based है. ठीक है, चलो बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ा जाए. Which of the following agencies issues currency notes on behalf of government of India? ये तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जरा. Finance Minister of India issues them, Reserve Bank of India issues them, all the banks of the country can issue them, World Bank issues the notes in India. What is that body? What is that institution? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन में भी पूछा जाएगा. What are the functions of Reserve Bank of India, which I will be teaching you just now है, इसी लेक्चर में अभी पढ़ाने वाली हूँ. So इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, तो बच्चों यहाँ तो हो गया. मैंने एक तुमको क्विक रिकैप दिया है ना, और तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए. अब आगे का चैप्टर ज़रा पढ़ा जाए, देखें भाई तुम लोगों को कितना याद है ना. तो मनी एंड क्रेडिट जो है वो हम कर रहे थे. हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर लिया था बच्चों, हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कर लिया था, लोन एक्टिविटीज़ बाय बैंक हमने स्टार्ट कर दिया था. 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन पढ़ना है हमें. ठीक है, फिर ये सारा कवर करेंगे. टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्रामीण बैंक. वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दीज. मैंने आपको ये भी बताया था मनी क्या है, एक कमोडिटी है जिससे चीज़ें एक्सचेंज होती हैं. ठीक है, कमोडिटी मनी, फिएट मनी, 2 तरीके की चीज़ें होती हैं. कमोडिटी मनी इज़ लाइक कि मैंने तुमको बोला बेटा तुम ना एक काम करो, मैं मुझसे पढ़ने आ जाओ, मुझे 1 बोरी गेहूं दे देना 1 महीने के बाद, तो कमोडिटी मनी हो गई. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है. मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग फिएट मनी यूज़ करते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट ने इशू किया है करेंसी नोट वही यूज़ किया जा रहा होता है. जैसे अब जेल वगैरह में जाओगे ना तो सिगरेट से चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, तो वो कमोडिटी मनी है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें मैंने आपको ये भी पूछा था कि आप मोस्टली कैसे पैसे खर्च करते हो बच्चों, बताओ. तो देन आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कि भाई मैं तो अभी इन चारों मेथड से पैसे जो हैं खर्च कर रही हूँ, क्योंकि मैं कमा भी रही हूँ. ठीक है, काइंड ऑफ आजकल तो आई थिंक गूगल पे ही सबसे ज़्यादा चल रहा होता है. तो हाँ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में भी कुछ बच्चों के पास होता भी है, जो माइनर्स हैं उन लोगों ने भी अकाउंट अगर खुलवा रखा है तो. उसके अलावा हमने बच्चों बेसिकली पढ़ा था पुराने ज़माने में कैसे ट्रांजैक्शन होता था, विच वॉज बार्टर सिस्टम, है ना. चीज़ एक सामान के बदले दूसरा सामान आप एक्सचेंज कर लो. लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी थी, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स था. फिर मैंने आपको थोड़े PYQs कराए थे लास्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड. देन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने ये सारे फॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुआ है मनी, वो हमने पढ़ा. पुराने ज़माने में हम ऐसे कौड़ी सीशेल यूज़ करते थे, फिर राजाओं ने मेटालिक मनी प्रिंट किया, फिर गवर्नमेंट आई तो उन लोगों ने ऐसे करेंसी नोट्स इशू किए. आज की डेट में बैंक के अंदर आप चेक वगैरह आपको मिलता है अगर आपने डिपॉजिट कराया, या क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ होता है, या फिर आजकल तो भाई बिटकॉइंस एंड ऑल भी यूज़ होने लग गए हैं. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ द मनी. एंड देन हमने पढ़ा था कुछ फैक्ट्स इंटरेस्टिंग वाले. मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने कंप्यूटर से जो हमारी रुपी है उसका सिंबल जो है वो टाइप कर सकते हो, है ना बेटा. फंक्शंस भी पढ़ा था हमने. डिपॉजिट्स विद बैंक जो है यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किया था वहाँ, जिसमें मैंने आपको बता दिया था ये चेक के बारे में पूरा पूरा, है ना. ये सब वी हैव कवर्ड. नाउ टुडे वी नीड टू स्टार्ट विद द लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक. हाँ जी, ठीक है. तो बैंक जो है वो बेसिकली लोन देती है. ठीक है, कैसे देती है वही हमें आज पढ़ना है. व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक. क्या करती है बैंक. सपोज करो मैंने बैंक में
अभी 1 नवंबर को सैलरी अगर आती है मेरी, तो हम सपोज करो मैंने 50,000 रुपीज जमा कराए बैंक में। बैंक क्या करेगी? 50,000 रुपए का सारे पैसे अपने पास इकट्ठा करके रखती जाएगी? नहीं, बैंक जो भी नीडी होंगे उनको दे देगी ये। अ बैंक इज अ बिजनेस दैट बोरोज एंड लेंड्स मनी। ठीक है, तो डिपॉजिट में क्या होता है? पीपल डिपॉजिट मनी इन द बैंक। एक्स्ट्रा मनी जो भी होता है हम डिपॉजिट करते हैं, सैलरी आती है डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक कीप ओनली अ स्मॉल proportion ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ कैश विद इन themselves, दैट इज 15%। सिर्फ 15% एज अ कैश बैंक अपने पास रखती है, बाकी का क्या करती है? Why? This is kept as the provision to pay the depositors. मेरा 15%, तुमने जमा कराया तुम्हारा 15%, ऐसे हम सबके 15% पैसे जो हैं वो अपने पास रखती है, सो दैट अगर मैं मांगने जाऊं या तुम मांगने जाओ पैसे तो वो तुमको दे पाए, विथड्रॉ करो तुम तो तुमको पैसे मिल पाए। बट रेस्ट ऑफ द मनी का क्या होता है? वेयर डज द 85% मनी गो? किधर चला जाता है 85%? तो बच्चों bank extend loans. People and businesses often borrow money from the bank. The money they borrow is called loan. ठीक है? There is a huge requirement of loans in our country. They pay loan back with the interest. और बैंक जो है ऐसा नहीं है पैसे दिए और फिर भूल गई, नहीं, आपको चुकाने भी पड़ेंगे ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ आपको बैंक को वो पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा एक स्कीम होता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर जो सेवर्स हैं, लेट अस सपोज सेवर जो है वो मैं हूं, RSYT रश्मि सिंह योर टीचर। ठीक है, बैंक जो है लेट अस सपोज बैंक का नाम रखते हैं पैसा ही पैसा बैंक। ठीक है, पैसा ही पैसा बैंक है। RSYT ने पैसा ही पैसा बैंक में 50,000 रुपए डिपॉजिट कराया लेट अस सपोज। ठीक है, अब इसका जो भी 15% होगा, है ना, 15% बोले तो लाइक 12.5 है ना, 50,000 का 12,500 है ना, ये अपने पास रख लिया हमारी जो भी बैंक है पैसा ही पैसा बैंक ने, और बाकी जितना भी पैसा था वो बोरोवर्स को लेंड कर देती है। ठीक है, अब मैंने 50,000 जमा कराया ना, तो मुझे 4% इंटरेस्ट दिया इसने, लेकिन जो इसने बोरोवर को लोन दिया ना 50,000 माइनस 25 के 12.5 के करके, ये जो भी मनी आया ना इस पे बोरोवर से क्या करती है? इंटरेस्ट लेती है, जो कि होता है 12%। तो बोरोवर से 12% इंटरेस्ट ले रही है, मुझे 4% ही दे रही है, 8% तो बच गया ना बैंक के पास। तो 8% जो है वो क्या है? इसका खुद का बैंक का अर्निंग है, जो कि वो अपने स्टाफ को पे करेगी। देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ लोन फॉर वेरियस एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा डिमांड होती है लोन की। बैंक हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि मैंने आपको बताया 12%। जो डिफरेंस होता है ये दोनों इंटरेस्ट के बीच में, वही हमारे बैंक की क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, सो इन दिस वे बैंक क्या कर रही है बेटा? मेडिएट कर रही है किसके बीच में? जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है और जिनको पैसे की नीड है, नीडी लोग, इन दोनों के बीच में बैंक जो है वो हमारी क्या है? पैसा ही पैसा बैंक मीडिएटर है। ठीक है, ओके। So explain with example how people are involved with the bank. So whenever you are asked this question, you have to start from the beginning. Like people earn money, they generate income, and whatever extra savings they have, they deposit it with the bank. जो भी extra saving है deposit करते हैं। क्यों करते हैं? बहुत सारे reason है। सेफ है हमारा पैसा, ठीक है, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, so these are the reason why we deposit money in the bank. ठीक है, अब जो हमारी बैंक होती है वो उसका सिर्फ 15% कैश अपने पास रखती है, 85% बोरोवर्स को दे देती है, लेंड कर देती है। क्यों? क्योंकि लोन की बहुत रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, अब ये बोरोवर से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है और जो डिपॉजिटर है उनको कम इंटरेस्ट देती है। इन दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है, दैट इज द अर्निंग ऑफ द बैंक। That's it. You have to explain the complete thing because this question has come so many times in your exam. पूरा एकदम A to Z सब कुछ explain करना आपको।
ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट आर द टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब जब लोन लिया किसी बोरोअर ने तो क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। अगर किसी ने उधार लिया है तो क्या क्या हो सकता है। तो उधार क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इट रेफर्स टू एन अग्रीमेंट विच लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विथ, ठीक है, मनी। एक अग्रीमेंट है जहां पर लेंडर जो है वो बोरोअर को मनी देता है या फिर गुड्स या सर्विसेज भी दे सकता है। क्यों देता है, इन रिटर्न ऑफ द फ्यूचर पेमेंट, इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट, कि भाई फ्यूचर में आप पैसा पे कर दोगे इसीलिए आपको पैसा उधार पे दे दिया जा रहा है, ठीक है। सो क्रेडिट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोअर। लेट अस सपोज तुम मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हो, लेंडर एंड बोरोअर, दैट आई विल रिटर्न यू द मनी in future, there's a promise and that is why you are giving me the loan. तो ये एक agreement की तरह है. Credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower, lender supplies the borrower with the money, or it could be some kind of service, it could be some kind of goods also, in the promise of that I will be paying it in future. ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, I will give you 200 kg of the wool today if you supply me with the milk for 3 months. तो ये क्रेडिट का मतलब होता है बाय नाउ पे लेटर, ठीक है। तो अभी उसको क्या किया, वुल दे दिया और एक डील कर ली कि 3 महीने तक तुम चुकाते रहना, ठीक है, लेकिन अभी इमीडिएटली उसको पूरा वुल दे दिया। आर क्रेडिट्स एंड लोन्स द सेम, बताओ। लोन क्या होता है, लोन गिव्स यू अ लंप सम ऑफ मनी दैट यू रीपे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अ लाइन ऑफ क्रेडिट लेट्स यू बोरो मनी अप टू अ लिमिट एंड पे इट बैक एंड बोरो अगेन, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड्स में देखते हैं। वैसे आपके बुक के अंदर क्रेडिट का मतलब लोन ही है, दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जा रहा है, बट क्योंकि यू पीपल आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ लाइक मॉडर्न इकोनॉमीज, राइट, सो यू शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स रियली वेल। लोन में आपको जैसे 5 लाख का लोन लिया तो पूरा आपको दे दिया गया 5 लाख रुपए, अब आप वो 5 लाख रुपए खर्च करिए, ठीक है। लेकिन क्रेडिट में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक लिमिट बंधी हुई होती है, 45,000 का क्रेडिट है, कर लो शॉपिंग, बाद में आप वो 45,000 चुकाओ, फिर अगले महीने वापस लिमिट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, उस पर पेनाल्टी लगेगी। दैट इज द डिफरेंस, ओके, बिटवीन क्रेडिट एंड लोन। ओके, नाउ क्रेडिट का पॉजिटिव रोल क्या होता है। तो यहाँ पर ना आपको बताया कि फेस्टिव सीजन है और एक सलीम नाम का इंसान है, ठीक है, वो शू बनाने का काम करता है। उसको अचानक से फेस्टिव सीजन में 3000 पेयर ऑफ शूज का क्या आता है, डिमांड आता है। अब कोई अपने पास इतना सारा लेदर तो खरीद के रखेगा नहीं, ना ही इतने सारे लेबर को ऐसे ही फ्री में बिठा के रखेगा अपने यहाँ कि भाई जब ऑर्डर आएगा ना तब तुम लोग बनाना, ऐसा तो होगा नहीं। तो 3000 पेयर का जब इसको आता है ना ऑर्डर, तो सलीम क्या करता है, वो अपना वर्किंग कैपिटल नीड्स जो है ना, एक मिनट, आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन। वो अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए क्रेडिट लेता है। अब देखो क्रेडिट मैंने आपको क्या बताया, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ गुड्स, और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो पैसा लेता है वो, ठीक है। द क्रेडिट हेल्प्स हिम मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ द प्रोडक्शन। अब क्या करता है ये, 3000 पेयर ऑफ शूज बनाना है ना, तो पहले ही 1000 पेयर ऑफ शूज का पैसा जो है वो ले लेता है, फिर लेदर भी ले लेता है, एंड जिसके लेबर होते हैं उनसे सर्विसेज भी ले लेता है। जैसे देखो इन मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी है वो सर्विसेज ही हो रहे हैं, ले रहे हैं, पहले हमसे सर्विसेज लेते हैं, बाद में हमें सैलरी दे रहे होते हैं। सो दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ टेकिंग अ क्रेडिट, they are taking the credit of services in the promise that they will do the future payment। सैलरी हमें देंगे, पहले हम 1 महीने काम करते हैं फिर सैलरी मिलती है ना, ऐसे ही तो नहीं मिल जाती, फर्स्ट कोई सैलरी मिल गई फिर आप काम करते रहो, आप ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर भी सलीम जो है पैसा भी लेता है, गुड्स भी लेता है, और जो उसके लेबर है उनसे सर्विसेज भी लेता है, ठीक है। एंड दिस क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। अपना प्रोडक्शन भी वो टाइम पे कंप्लीट कर लेता है एंड उसकी अर्निंग बढ़ जाती है। तो इस तरीके से सलीम को फायदा हुआ, उसने जो लोन लिया ना उससे पॉजिटिव हुई चीजें, उसकी अर्निंग बढ़ गई, ठीक है, उसने टाइम पे प्रोडक्शन किया, उसने टाइम पे प्रोडक्शन करके दे दिया सामने वाले को, एंड प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। तो दिस इज अ पॉजिटिव सिचुएशन। बट समटाइम्स क्रेडिट ऑल्सो टर्न्स इनटू अ नेगेटिव सिचुएशन। यहाँ पर आपका स्वप्ना का केस बुक के अंदर बताया हुआ है कि स्वप्ना जो है ना
ग्राउंडनट्स ग्रो करती है, मूंगफली ग्रो करती है, और काफ़ी ज़्यादा इसका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है नेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। बारिश होएगी, ठीक है, तभी आपका फसल अच्छा होगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कंप्लीटली आपकी मेहनत पे चीज़ें नहीं है, ठीक है, नेचर पे भी डिपेंडेंट है। तो ये क्या करती है, पहले तो लोन लेती है, कहाँ से लेती है, मनी लेंडर से लोन लेती है, बट इसके फसल में, साल के बीच के फसल में ही पेस्टिसाइड्स वगैरह इसको लेने पड़ते हैं, क्योंकि इसके फसल के अंदर कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका 1 साल का फसल तो बर्बाद हो गया, लोन नहीं चुका पाई, फिर से लोन ले लिया, सेकेंड टाइम जो है, सेकेंड टाइम भी इतना अच्छा फसल नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड फसल जितना इसको क्रॉप चाहिए था लोन चुकाने के लिए। तो अल्टीमेटली शी हैड टू सेल अ पीस ऑफ हर लैंड टू रीपे द लोन। वाई? बिकॉज द इंटरेस्ट रेट वॉज ऑल्सो ह्यूज, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट था। सो इन दिस केस credit played a very negative situation. So sometimes what happens, people enter into debt trap. डेट ट्रैप को हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, बहुत ही अच्छा टर्म है, देखो इससे तुम्हारा पूरा मीनिंग ही क्लियर हो जाएगा, कर्ज जाल, है ना। तो कई बार ना ये कर्जे के जाल में, लोन के साइकिल्स में लोग घुस जाते हैं, निकल नहीं पाते। सो डेट ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर द बोरोवर इज अनेबल टू रीपे द लोन, and because of that they have to sell a part of their asset. जो कोलैटरल दिया था वही सेल करना पड़ रहा है आपको, जमीन ही सेल करनी पड़ गई, तो इससे सिचुएशन और वर्स हो गई ना। सो दैट इज व्हाई वी से दैट क्रेडिट समटाइम्स आल्सो प्ले अ नेगेटिव रोल फॉर द बोरोवर, ठीक है। सो व्हाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। स्वप्ना का केस पढ़ के समझ आ ही गया होगा आपको कि हमें चीप एंड एक तरीके से अफोर्डेबल क्रेडिट चाहिए। क्यों? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट विल लीड टू हायर इनकम। सबसे पहले तो अगर क्रेडिट होगा तो आप कुछ और एक्टिविटी करोगे, उससे इनकम बढ़ जाएगा, जो लोग हैं वो बोरो कर पाएंगे फॉर वैरायटी ऑफ नीड्स। अगर सस्ता लोन है मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट है, लोन सस्ता है मतलब लो इंटरेस्ट है, लो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो अगर लो इंटरेस्ट रेट रहेगा ना बच्चों, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। व्हाई इज इट सो? क्योंकि आप बहुत सारे नीड्स के लिए, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लोन ले पाओगे। इट एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, डू बिजनेस, सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इफ द लोन इज चीप, पीपल वुड टेक लोन, people would set up some small industry, they will do agriculture also, they will start their own small businesses also if they have the capital, right? It enables more investment which lead to the acceleration of economic activity. ज़्यादा investment करोगे ज़्यादा economic activity होगी, और उससे ultimately क्या होगा, देश की तरक्की होगी, है ना। Affordable credit would also end the cycle of debt trap. और अच्छा अगर आपका क्रेडिट सस्ते में लिया तो डेट ट्रैप नहीं होगा, ना ही आपकी बहुत सारी अर्निंग लोन रीपे करने में जाएगी। सो इट विल बूस्ट द इकोनॉमी ऑल इन ऑल, ठीक है। इससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगा। इसको आप ऐसे समझो कि मैं, तुम पढ़ाई करो, मैं तुमको रोज डांट रही हूँ, अगर मैं रोज तुम्हारी गलती के लिए डांटूंगी ना तो इतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा जितना अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो मैं उसके लिए तुमको तारीफ करूँ, उसके लिए प्रेस करूँ। दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू एंड देन यू विल स्टार्ट स्टडिंग मोर, राइट? Just like that, if the loan is quite cheap, people are encouraged to take the loan, and then they do different kind of economic activity which basically contribute into the GDP of the country. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट, वो और हमारे को हेल्प करता है इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? देखो बैंक अगर लोन दे रही है तो ऐसे फ्री में तो लोन देगी नहीं, है ना, कुछ ना कुछ तो टर्म्स एंड क्रेडिट रहेगा ही। सो हर लोन अग्रीमेंट के साथ बच्चों एक इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड होता है जो बोरोवर को पे करना ही करना है, ठीक है, अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब अगर मैंने 100 रुपये उधार लिए, तुमने बोला मैम 10% इंटरेस्ट लूंगा मैं, तो मेरे को 110 रुपये पे करने पड़ेंगे, विच इज़ 100 रुपीज़ प्रिंसिपल, 10 रुपीज़ इंटरेस्ट। तो ये चीज़ हमेशा बैंक भी करती है, बैंक बेवकूफ़ थोड़ी है, ऐसे ही लोन थोड़ी दे देगी, ठीक है। Repayment of the principal. In addition, lenders may demand collateral also. And if you have given me 100 rupees, you may ask कि मैम चलो आपकी बॉटल उधार पे रख दो, है ना। क्यों? क्योंकि भाई ये बॉटल आपको बहुत प्यारा है। या फिर तुमने 100 रुपीज़ उधार दिए और बोला ये फ़ैन जो है ना मैं आपके पास क्यूट सा, ये आप मेरे पास दे दो, जब आप 110 रुपये लौटाओगे तो आपको फ़ैन मिल जाएगा।
सो दिस विल एक्ट एज अ कोलैटरल। ठीक है, कोलैटरल क्या होता है? कोई भी एसेट होता है जो गिरवी रखा जाता है, लोन देती है जब बैंक, तब। ओके, so collateral is an asset that the borrower owns and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid. I think I have very in a very simple language I have explained you with this example of the fan, which is a cute fan. Okay, the interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together comprise the terms of credit. तो ये चार चीजों को मिलाकर बनता है बेटा टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है दैट यू हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। लाइक हमारे केस के अंदर हमें अपने जॉब का जो होता है ना, सैलरी डिपॉजिट जो भी होते हैं, सैलरी स्लिप, वो करना होता है। सो यू हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, इससे रिलेटेड एक आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। मोड ऑफ रीपेमेंट का मतलब है हाउ आर यू गोइंग टू रीपे द लोन? आर यू गोइंग टू पे द मंथली इंस्टॉलमेंट्स और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली, एनुअली? तो ये मोड ऑफ रीपेमेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीजों को इकट्ठे कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द क्रेडिट। ओके, सो व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलैटरल व्हाइल लेंडिंग? बिकॉज हर लोन अग्रीमेंट एक इंटरेस्ट रेट के साथ आता है, प्रिंसिपल के साथ तुमको वो भी चुकाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आप कोलैटरल भी देते हो। क्यों? क्योंकि कोलैटरल गारंटी की तरह एक्ट करता है। सिंपल। ठीक है, यही आपका कीवर्ड है, यही ढूंढ रहा है टीचर आपके आंसर में। ठीक है, तो कोलैटरल एक गारंटी की तरह होता है until the loan is repaid. That is why collateral is asked whenever a loan is given. ठीक है, एंड ये चारों को मिलाकर के टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। वो पूरी फुलफिल होगी तो ही लोन मिलेगा, नहीं तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, और रिस्क ज़्यादा होगा तो कभी भी बैंक बेटा लोन नहीं देगी। ठीक है, देखो ऐसा बोला भी जाता है, इफ़ यू वांट टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक फर्स्ट यू विल हैव टू प्रूव दैट यू डू नॉट नीड लोन, यू आर अ वेल्दी पर्सन, है ना, आप इतने सक्षम हो कि आप लोन चुका दोगे। ये जब तक तुम प्रूफ नहीं करोगे बैंक लोन देगी ही नहीं। बैंक इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, सो लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव, बैंक के अलावा कोऑपरेटिव भी होती हैं विच इज ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहकारी बैंक भी कहा जाता है, कई बार कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है, सहकारी समाज भी कहा जाता है। सहकारी मतलब एक दूसरे के कोऑपरेशन से चल रही है। ठीक है, जैसे मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्स फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरिया। जितने भी कोऑपरेटिव के मेंबर होंगे ना, वो थोड़ा थोड़ा अपना रिसोर्स इकट्ठा करेंगे। मतलब मैं अगर सपोज करो टीचर्स के कोऑपरेटिव की मेंबर हूँ, मैं हर महीने 5,000 रुपये डाल रही हूँ, ऐसे ही सभी लोग 5,000 डाल रहे हैं। फिर कल को अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है तो यही जो सेविंग हमने पूल किया हुआ है ना, इसमें से उसको दिया जाएगा और उसको इंटरेस्ट चुकाना होगा। जैसे बैंक देती है वैसे ही कोऑपरेटिव भी देती है। ठीक है, अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव होते हैं बेटा, जैसे फार्मर्स का कोऑपरेटिव होता है, वीवर्स का होता है, मोस्टली गांव में ज़्यादा होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का होता है। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन द विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द सोनपुर। सोनपुर एक गांव है बिहार के अंदर, वहाँ पे कृषक कोऑपरेटिव की केस स्टडी दी हुई है। ठीक है, इसमें 2300 फार्मर्स हैं और ये थोड़े थोड़े डिपॉजिट सारे फार्मर से एक्सेप्ट करती है और इन डिपॉजिट को कोलैटरल की तरह यूज करती है। और ये कोऑपरेटिव फिर बाद में बच्चों एक बैंक से लोन लेती है। तो बैंक का तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा। कोऑपरेटिव जो हमारे मेंबर्स का जो भी डिपॉजिट है ना, उसको कोलैटरल की तरह यूज कर रही है। These funds are used to provide loan to the members. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. ठीक है, ऐसे ही होता है। कृषक कोऑपरेटिव जो है वो लोन प्रोवाइड करती है किन चीज़ों के लिए? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए, लोन फॉर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरी के लिए, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फॉर वैरायटी ऑफ अदर रीजन। ये सारी चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ऐसे ही आपके बुक के अंदर ये एक एक्टिविटी दी हुई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना इससे रिलेटेड कई बार आपको एमसीक्यूज आया हुआ है एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि मेघा नाम की एक लेडी है, ठीक है, जिसने 5 लाख का लोन लिया है हाउस खरीदने के लिए। एनुअल इंटरेस्ट रेट 12% है और लोन 10 साल में चुकाना है मंथली इंस्टॉलमेंट दे करके। ठीक है, मेघा को बैंक को अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स के सबमिट करने पड़े एंड सैलरी भी बतानी पड़ी।
द बुक रिटेन्ड एज कोलैटरल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। और बैंक ने लोन दिया लेकिन पेपर जो है नया घर का रख लिया, बोला जब तुम लोन चुका लोगे ना तब देंगे। तो अब आपको ये सारी चीजें फिल करनी है। लोन अमाउंट कितना है बेटा? 5 लाख। ड्यूरेशन कितना है? 10 years। डॉक्यूमेंटेशन किस चीज का चाहिए था? एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी स्लिप। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और यहाँ पे लिख देती हूँ सैलरी स्लिप। ये दोनों चीजें उससे बैंक ने ले ली। इंटरेस्ट रेट कितना है बताओ? 12% है, ठीक है। मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट। कोलैटरल क्या है? पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। ठीक है, पेपर्स ऑफ न्यू हाउस। ये है आपका सारा का सारा, एक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो जितने भी हमने बैंक से कोऑपरेटिव से लोन लिए वो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है, जिसको सुपरवाइज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट बैंक मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस, 15% जो है वो अपने पास रखती है, बाकी सारा वो दे देती है लोन पे। तो आरबीआई मॉनिटर करता है कि सारी बैंक 15% रख रही है कैश या पूरा 100% लोन दे रही है, ठीक है। सिमिलरली आरबीआई ये भी देखती है कि लोन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज को, अमीर लोगों को तो नहीं दिया जा रहा, गरीबों को ऐसे छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कर रही है आरबीआई मतलब बैंक्स, ठीक है। पीरियोडिकली बैंक को पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है कि वो किसको कितने रेट पे लोन दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है और ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना एक आपको पिक्चर बना दिखाया गया है कि 1000 रुपीज अगर रूरल एरिया में कहीं पे लेंड हो रहा है तो कौन कौन कैसे कैसे कहाँ से पैसा जुगाड़ कर रहा है। गवर्नमेंट से लोग 1% लोन ले रहे हैं, कोऑपरेटिव से 25%, कमर्शियल बैंक से 25% ले रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन से 5% ले रहे हैं, लैंडलॉर्ड से 1%, मनी लेंडर से 33%, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से 8%, अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से 2%। यानी कि 33 + 8 + 2 क्या हो गया आपका? इनफॉर्मल, ठीक है, विच इज 43। एंड जो 57% लोन लिया जा रहा है वो किसी किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से लिया जा रहा है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज कर रही है कि भैया कितने रेट पे लोन दिया जा रहा है, कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, कब रीपे करोगे, कब चुकाओगे, क्या कोलैटरल है नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। तो दिस विच इज वेरी रिस्की, ठीक है। दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। जो मनी लेंडर है जितना इंटरेस्ट चाहे 10%, 15%, 48%, 52% दे सकते हैं, ठीक है। Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge much higher interest rate. वहां पे तुमने देखा ना 12% एक साल का इंटरेस्ट रेट मेघा ने पे किया, यहाँ पे क्या करते हैं 5% पर मंथ, ऐसा ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है which actually becomes kind of 60% in a year, ठीक है। Higher cost of borrowing means a larger part of the earning of the borrower is used to repay the loan. अगर मैंने 10% पे लोन लिया और मैंने 50% पे लोन लिया तो भाई मेरा तो जो भी पैसा मैंने कमाया सब तो लोन चुकाने में ही चला जाएगा ना बेटा। दिस कुड लीड टू द इंक्रीजिंग डेट एंड डेट ट्रैप, इससे डेट ट्रैप हो सकता है। फॉर दीज रीजन बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लेंड मोर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट एंड दिस लाइन कम्स अ लॉट मेनी टाइम जस्टिफाई वाले में, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई सुपरविजन नहीं है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। दैट इज वाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज वेरी मच रिक्वायर्ड in rural area, because in rural area people are less aware, they do not have collateral, we need to support them. Now many a times questions also come, what differentiate between formal sector and informal sector, so this is a kind of complete package वाला lecture है भैया, सब कुछ बता दिया मैंने तुमको जो भी आ सकता है ना। तो फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जब हम लेंडिंग करते हैं बैंक्स एंड रिलेटिव से, बैंक एंड कोऑपरेटिव से, आई एम सो सॉरी। इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉय, रिलेटिव, फ्रेंड, किसी से भी तुम लोन ले रहे हो, ठीक है। बैंक एंड कोऑपरेटिव
लेस इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है बेटा, 10% पर एनम। लेकिन इनफॉर्मल जो है वो बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, 3 to 5% पर मंथ, which could be like 60% a year. It results in more income and better condition. अगर आपने बैंक से लोन लिया है, चीप इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है, तो आपकी इनकम बेटर हो जाएगी, जैसे सलीम की हो गई है ना। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजल्ट इन लेस इनकम एंड बोरोअर समटाइम्स लीड्स टू डेट ट्रैप ऑल्सो। ये लोग बोरोअर जो है ना डेट ट्रैप में भी फंस जाते हैं, कर्ज जाल में फंस जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन जो है उसको सुपरवाइज करती है। यहाँ पे कोई नहीं है सुपरवाइज करने वाला भाइयों और बहनों, ठीक है। और एंड में तुम चाहो तो एक एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक इफ समवन इज टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, दैट इज फॉर्मल क्रेडिट. इफ समवन इज टेकिंग लोन फ्रॉम अ फ्रेंड एंड रिलेटिव, देन दैट इज informal credit. Formal and informal credit, who gets what? 85% of the loan taken by the poor household in the urban area is informal sector. मतलब शहरों के अंदर 85% पुअर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। अर्बन हाउस होल्ड में 10% जो लोन है आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, वाइल 90% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। अर्बन हाउस होल्ड मतलब जो रिच लोग हैं वो 90% लोन बैंक से ले रहे हैं, ठीक है। रिच हाउस होल्ड चीप क्रेडिट अवेल कर रहा है from informal lender, whereas the households have to pay large amount of borrowing. The rich households are availing cheap credit from formal lender, है ना, formal lender हो गया आपका बैंक। Okay, the formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. Remaining credit informal से ही ले रहे हैं गांव के अंदर। तो इसलिए बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो गांव के अंदर पेनिट्रेट करे, गांव के अंदर जा कर के लोगों को सस्ते दर पर चीप लोन्स दे। नहीं तो भाई लोगों की जो अर्निंग है ना वो ऐसे ही कहाँ चली जाएगी, बैंक मतलब मनी लेंडर्स के पास चली जाएगी। कोई एक्चुअली में कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए है ना, क्योंकि हमने देखा रूरल एरिया में इनफॉर्मल सेक्टर से बहुत ज़्यादा लेंडिंग हो रही है। सो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम वी हैव कम अप विद द सोल्यूशन। हमारा जो सरकार है वो एक सोल्यूशन के साथ आया है विच इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कमेटी होती है जिसमें 15 से 20 लोकल वुमेन होती है। अच्छा बच्चों, वो वाला जो एक था ना हमारा क्वेश्चन जिसमें मैंने 20 से 25 लगा दिया था, 15 to 20 होगा, हाँ। और ये जो वुमेन है ये लगभग 40 साल की होती हैं, 18 से 40 साल की, और सब आपस में एक दूसरे को जानती हैं, अगल बगल की होती हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इंडिया के अंदर आपको दिखेगा ही, लेकिन ये बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज में भी मिलता है। सेविंग जो है वो 25 से 100 होता है पर मेंबर। ये लोग 2 साल तक अगर सेव ऐसे पैसे करते रहेंगे एवरी मंथ, तो लोन बैंक देगा एसएचजी के नाम पर इन लोगों को, ठीक है। सो बेसिकली एसएचजी बिकम्स एलिजिबल फॉर द लोन। इसके अलावा जो हमारे एसएचजी है ना उसका और भी ऑब्जेक्टिव है, क्या है? सेविंग्स जो है वो उसकी एक तरीके से क्वालिटी इनकलकेट करती है, लोन दे देती है विदाउट कोलैटरल, बहुत सारे पर्पसेस के लिए पैसा मिल जाता है, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट रेट एंड इजी टर्म्स पे आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है। एंड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी महिलाएं डिस्कस करती हैं सोशल इश्यूज, एजुकेशन, हेल्थ के। अरे भैया मतलब टोनी की मम्मी, टोनी आजकल इतना पतला दुबला क्यों हो गया, आप खिलाते नहीं हो क्या? ऐसे सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं, ओके। अब ये हैं पर्सन जिन्होंने एक्चुअली में सबसे पहले ग्रामीण बैंक या सेल्फ हेल्प ग्रुप की के बारे में बात किया। इज द फाउंडर ऑफ दैट मोहम्मद यूनुस, नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको 2006 में। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश 1970 में स्टार्ट हुआ था बेटा। 6 मिलियन बोरोवर्स थे 40,000 विलेजेस के अंदर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोरोवर्स हैं वो विमेन थी। दीज बोरोवर्स हैव प्रूव दैट ओनली that not only are poor women reliable borrowers, they can start and run variety of small income generating work. They have proved it कि जो women होती हैं वो बहुत ही reliable borrowers होती हैं। अगर उनको उधार दिया जाए तो वो पक्का चुकाती हैं and वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। Poverty is not created by the poor people. This is what he wants to say, which is so apt also, right? We need to find a practical solution of the poverty, which is this.
सेल्फ हेल्प ग्रुप वन ऑफ द प्रैक्टिकल सोल्यूशन है. Thus, Grameen Bank has played a significant role in the improvement of the condition of the Bangladesh. प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो हैं ग्रामीण बैंक के फाउंडर थे. 2006 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था. और इन्होंने कुछ और भी बहुत अच्छी चीज़ कही है. इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, अगर हम गरीबों को उनके टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल कंडीशन पे लोन दे पाएंगे, then these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to the create biggest development wonder. तो ये जो लाखों की संख्या में जो गरीब लोग हैं जिनके लाखों ड्रीम्स हैं, pursuits का मतलब क्या होता है, ड्रीम्स हैं, वो लोग सबसे बड़ा डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं. कितनी अच्छी बात कही है ना. सो दैट्स ऑल गाइज. एंड अगर आपने अभी तक नहीं एनरोल किया है इसके लिए, AIMT के लिए, ज़रूर करो. अनअकैडमी का के ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट होते रहते हैं, फ्री डेली टेस्ट भी चल रहा है. एंड बच्चों टेस्ट सीरीज़ के ये टाइमिंग्स हैं. एंड मेरे प्यारे बच्चों, डाउट रूम इज़ ऑल्सो देयर फॉर द प्लस स्टूडेंट्स. अदर देन दैट आपको अनअकैडमी पे बहुत सारे फीचर मिलते हैं, लाइक यू कैन लर्न ऑनलाइन एट सिटिंग कंफर्टेबली एट योर होम. एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलता है. इनफैक्ट 10th के साथ 11th 12th फ्री में मिलता है. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, आपको मेंटोरशिप मिलती है, PDF नोट्स मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है. अभी अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, यू कैन गेट 25% ऑफ विद माई कोड RSYT. एंड 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है. इसके अलावा आप फ्री में भी आकर के अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो. अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाओ, आपको लिंक दिया रहेगा मेरे प्रोफाइल का. उस लिंक से बेटा तुम आकर के 100% फ्री वाली जो क्लास है वो लो. आइकॉनिक के अंदर एक मेंटोर होता है, इसलिए वो मेंटोर 1-on-1 पढ़ाता है तुमको, एक चैप्टर, टॉपिक, वट एवर इज देयर. तो इसके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं. ठीक है. So that's all for today. If you have any doubts, please leave it in the comment box. I will check it. I will arrange another session for you all. You can join my special classes on Unacademy learning app, which is absolutely 100% free. वहाँ पर आप आओ, आकर के हमारे क्लासेस को अटेंड करो. इट विल बी रियली हेल्पफुल. जितने भी डाउट्स हैं आप वहाँ पे क्लियर करो एंड हमारे साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करो. ओके, so that's all for today, my dear students. Let's crack it. Thank you.